اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو چھوڑ دیجئے، یہ 4 دن کی زندگی ہے، اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، یہ جتنی یہاں پر کھائیں پیئیں موج مستی کر لیں، لیکن ایک دن ان کو لوٹ کر کے ہماری طرف ہی آنا ہوگا۔ اور اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ جو ذکر ہے اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور یہ ذکر سے مراد جو ہے وہ قرآن اور حدیث ہے، کیونکہ سورہ النحل کی آیت نمبر 44 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کی طرف اللہ نے ذکر کو نازل کیا ہے، آپ اس کو کھول کر کے لوگوں کے لیے بیان کر دیجئے جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ تو حدیث جو ہے، جس طرح قرآن ہمارے لیے حجت ہے، اسی طرح حدیث بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی حدیث کوئی ضمنی چیز ہے، اس کو تو چھوڑ بھی دیا جائے تو کوئی بات نہیں ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لا تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی، کہ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم دونوں کو تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ یہ پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں جی حدیث تو 200 سال بعد لکھی گئی، یہ کوئی اتنی اتھینٹک چیز نہیں ہے، یہ بھی لوگوں کے منہوں کی باتیں ہیں۔ وہ اس بر صغیر کے اندر اس کے اوپر باقاعدہ اسکول آف تھاٹ کھڑے کیے گئے، وہ پرویزی فکر کے لوگ ہوں یا آج کے دور میں جو کلیتاً اگرچہ حدیث کا رد نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے، مگر کچھ اصول اور ضوابط اس طرح کے بناتے ہیں کہ جس کا نتیجہ انکار حدیث نکلتا ہے، وہ غامدی فکر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دونوں چیزیں دیتے گئے، اور ایسی بات بھی نہیں ہے کہ حدیث کو 200 سال بعد لکھی گئی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث لکھی جاتی تھی۔ خطبہ حجت الوداع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو وہاں پر ایک صحابی آپ کے جن کا نام ابو شاہ تھا، وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ خطبہ لکھوا دیجئے۔ تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا اکتبوا لابی شاہ، کہ یہ ساری کی ساری باتیں جو میں نے آج کی ہیں یہ ابو شاہ کے لیے لکھ دی جائیں۔ اور صحابہ اکرام کے صحیفہ حمام بن مربع جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، ان کا جو حضرت ابو ہریرہ سے روایت کردہ صحیفہ وہ آج بھی اپنی صورت میں ملتا ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایات ہیں وہ بھی آج ہمیں ملتی ہیں۔ تو یہ لوگوں کا پروپیگنڈا ہے کہ حدیث جو ہے یہ 200 سال بعد لکھی گئی، بلکہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لکھی جاتی تھی۔ اور اگر حدیث کو چھوڑ دیا جائے، حدیث کو سکپ کر دیا جائے، تو آپ قرآن کے بنیادی تعلیمات جو ہیں ان کے مفاہیم کو نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے آج اقیم الصلاۃ، بعض لوگ جو ایسی فکر کے، جو ہٹ کر کے فکر والے لوگ ہیں، وہ نماز کے کچھ اور ہی معنی بیان کرتے ہیں۔ آپ کس طرح سے ایکسپلین کریں گے کہ نماز کسے کہا جاتا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، نماز پڑھنی کیسے ہے؟ اللہ رب العالمین نے قیام، رکوع اور سجدے کا ذکر تو قرآن میں کیا ہے، لیکن وہ کرنے کس طرح سے ہیں، ان میں پڑھنا کیا کچھ ہے، زکوٰۃ جو دین کا بنیادی ایک رکن ہے وہ دینی کیسے ہے، حج جو دین کا ایک بنیادی رکن ہے وہ ہم نے کرنا کیسے ہے، یہ سب کچھ ہمیں جو پتہ چلتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اس لیے حدیث جو ہے اس کو کسی صورت چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اگر ہم حدیث کو چھوڑتے ہیں، اس کے بالفاظ دیگر معنی یہ بنتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہمارا دین جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ اور پھر حدیث کی حفاظت کے لیے جو اسماء اور رجال کا باقاعدہ ایک فن ہے جس میں کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ کیا گیا، اور ایسا آدمی جو جھوٹ بولتا تھا، اپنی عام زندگی میں بھی جھوٹ بولتا تھا، علماء نے، محدثین نے حدیث لینے میں اتنی احتیاط کی کہ ایسے انسان سے بھی حدیث کو نہیں لیا۔ اور یہ جو چین کا ایک سلسلہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک باقاعدہ جو سند کا ایک سلسلہ ہے،
सलफ कहा करते थे अगर सनद ना हो तो दीन खत्म हो जाता है। हमारे उलमा ने इसके एक एक इंसान की जिंदगियों को महफूज करने के लिए लंबे लंबे सफर किए और हदीस की हिफाजत के लिए उलमा ने जो मेहनतें की वो इस चीज के ऊपर दलालत करती हैं कि ये हदीस हमारे असलाफ के यहां भी हुज्जत हुआ करती थी। और ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में कहा है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, ये हमने जो जिक्र नाजिल किया है उसमें कुरान भी जिक्र है, हदीस भी जिक्र है। हां इतना फर्क जरूर है कि हदीस जो है वो वही गैर मतलूब है और कुरान जो है ये वही मतलूब है, इसकी तिलावत की जाती है। हदीस की अगरचे उस तरह से तिलावत नहीं की जाती, लेकिन ये दोनों चीजें जो हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इल्का की जाती थी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, आप अपनी मर्जी से कोई बात कहते ही नहीं थे, जो अल्लाह आपकी तरफ इल्का और वही करते थे आप वही कहा करते थे। इसलिए हदीस भी हमारे लिए हुज्जत है। उसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की तखलीक का जिक्र किया है। अल्लाह फरमाते हैं हमने इंसान को मिट्टी से पैदा किया, और हदीस में आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम को जमीन की मिट्टी के मुख्तलिफ हिस्सों से लेकर के पैदा किया। आज शायद उसी का नतीजा है कि जिसकी वजह से बाद इंसानों के मिजाज जो है वो सख्त होते हैं, बाद इंसानों के मिजाज नरम है, कोई किसी रंग का है, ये उसी के असरात हैं। और अल्लाह फरमाते हैं वल जान खलकनाहु मिन क़ब्ल मिन नार समूम, हमने जिन्नों को जो है वो आग से बनाया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां पे इसका जिक्र किया। और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जब हमने आदम को पैदा कर दिया, हमने शैतान को कहा कि सजदा करो, फरिश्तों को कहा सजदा करो, शैतान ने सजदा करने से इनकार कर दिया और इस शैतान ने वहां पे अल्लाह से मोहलत मांगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको मोहलत दे दी, फरमाया इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, हाँ मेरे जो मुखलिस बंदे होंगे तुम उनके ऊपर जितने भी वार करोगे मेरे मुखलिस बंदे कभी भी तेरे दाव में नहीं आने वाले होंगे। और इस शैतान ने वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ये कहा, अल्लाह ने इसको कहा कि लैसा लका अलैहिम सुल्तानुन इल्ला मन इत्तबअका मिनल गावीन, हाँ जो तेरे बहकावे में आ गया, तेरे पीछे चल पड़ा, उसके ऊपर फिर अल्लाह की तरफ से आने वाले जो दलाइल होंगे वो भी असर नहीं करने वाले होंगे। उसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का जिक्र किया है कि ये जो जहन्नुम है उसके लिए भी 7 दरवाजे होंगे, लोगों को उसमें से दाखिल किया जाएगा। और उसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुत्तकीन का जिक्र किया है। अल्लाह फरमाते हैं जो मुत्तकीन होंगे फी जन्नातिन व उयून, अल्लाह की तरफ से उनको बागात और चश्मों के बहते हुए बागात में दाखिल कर दिया जाएगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं जब इन जन्नतियों को हम जन्नत में दाखिल करेंगे वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन अख़वानन अला सुरुरिन मुतक़ाबिलीन, इनके दिलों में जो एक दूसरे के लिए अपने भाइयों के लिए नफरतें होंगी, जो कदूरतें होंगी, हम उनको खींच करके इनके सीनों से निकाल देंगे। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब जन्नतियों को परवाने मिल जाएंगे कि तुम जन्नत में जाओ, पुल सिरात भी क्रॉस कर लेंगे, उसके आगे जो है वो एक रुकावट होगी जहां पर इंसानों को ऐसों को रोक लिया जाएगा जिनके सीनों में कदूरतें होंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के दाखिले से पहले पहले ये कदूरतों को, नफरतों को, एक दूसरे के मुतालिक जो हम अपने सीनों में बुग़्ज़ को भरते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नत में दाखिल होने से पहले पहले अल्लाह उन सबको निकाल देगा। और उसके बाद फिर अल्लाह की तरफ से ऐलान क्या होगा, वमा हुम मिन्हा बिमुखरजीन, आज के बाद तुम जब जन्नत में दाखिल हो जाओगे तुम्हें यहां से कभी निकाला नहीं जाएगा, तुम हमेशा हमेशा वहां पे रहोगे। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, अल्लाह फिर मौत को भी मौत दे देंगे। और हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेंढे की सूरत में अल्लाह मौत को ज़बा कर देंगे, उस दिन मौत को भी मौत आ जाएगी। और उसके बाद फिर जो होंगे वो हमेशा हमेश रहने वाले होंगे, वो चाहे जन्नत में जाने वाले हों या जहन्नुम में जाने वाले हों। उसके बाद इस सूरह के इख्तिताम पे अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे लोग
जो आपका इस्तेहजा करने वाले हैं, आपके मुताल्लिक मजाक उड़ाने वाले हैं, उनके बारे अल्लाह फरमाते हैं इन्ना कफीना कल मुस्तहजीन, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको ऐसे लोगों से जो आपका इस्तेहजा करने वाले हैं उनसे काफी हो जाएंगे। अगरचे ईमान वालों की ईमान की गैरत का ये मसला है कि वो इसके ऊपर कोई गुस्ताखी रसूल करे, उसके मुताल्लिक उनके ईमान के जज्बात का इजहार होना चाहिए, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं उनको काफी हो जाऊंगा, मैं उनसे बदला लेने वाला हूंगा। आपका दिल जो है, आपका सीना जो है, इनकी बातों से तंग नहीं होना चाहिए। अगर ये आपके मुताल्लिक को बातें करते हैं, आप इनकी बातों से परेशान मत होइए। अल्लाह फरमाते हैं वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, आप अपने रब की उतनी देर तक इबादत करते रहें जब तक कि आपके पास यकीन नहीं आ जाता। और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इस यकीन से मुराद अल मौत है कि जब तक मौत ना आ जाए आप उस वक्त तक अल्लाह की इबादत करते रहें। हमारे यहां बात सूफी हजरात जो तसव्वुफ की फील्ड में आगे निकल जाते हैं, वो कहते हैं कि यकीन से मुराद यकीन कहां है, तो अब हमें यकीन आ चुका है, अब इबादत की कोई जरूरत नहीं है। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ करके किसी को अल्लाह पर यकीन था? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, सही बुखारी की हदीस है, आपकी टांगे मुबारक काम नहीं करनी, फारिग ज़दा हो चुकी हैं, आप दो सहाबा के कांधों के ऊपर अपने हाथ रख करके, हदीस के लफ्ज हैं, आपके पांव जो है वो जमीन के ऊपर रगड़ खा रहे हैं, आप फिर भी नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में तशरीफ लाते हैं। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कोई था जिसको यकीन था? आप तो आखिरी वक्त तक जो है उम्मत को यही तलकीन करते रहे, और हमें भी इस बात की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि किसी का जो खात्मा होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल आमालु बिल खवातीन, तुम्हारे आमाल का दारो मदार तुम्हारे खात्मे के ऊपर है। इसलिए अल्लाह से हुस्ने खात्मा की तौफीक मांगते रहना चाहिए और अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए वतवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, अल्लाह जब तू हमें फौत करे तो हम फर्मा बरदारी की हालत में इस दुनिया से जाने वाले हों। उसके बाद आगे सूरा नहल शुरू होती है। इस सूरा मुबारका का नाम सूरा अन-नहल इसलिए है कि इसमें शहद की मक्खी का अल्लाह ने वाकया नकल किया है, और इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी बेशुमार नेमतों का जिक्र किया है। अल्लाह फरमाते हैं वल अनआम खलक़हा लकुम, अल्लाह ने चौपायों को तुम्हारे लिए पैदा किया जिनसे तुम गरमाइश हासिल करते हो, व मनाफ़िअ मिन्हा, जिनसे तुम बहुत सारे फायदे लेते हो, ताकुलूना, तुम इनके गोश्त को भी खाते हो। अल्लाह फरमाते हैं वलकुम फीहा जमालुन, उनमें तुम्हारे लिए जमाल है। जब शाम के वक्त तुम अपनी उन सवारियों के ऊपर अपने सामानों को लोड करके लेकर के आ रहे होते हो, या बसा औकात तुम उनके ऊपर ये शाही सवारी के तौर पे इनको इस्तेमाल करते हुए तुम इनके ऊपर बैठ के आ रहे होते हो। और अल्लाह फरमाते हैं ये अनाम और चुपाए वो हैं जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए इसलिए पैदा कर दिए कि तुम अपने बोझों को इनके ऊपर लाद करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले होते हो। अल्लाह फरमाते हैं बालिगी इल्ला बिशिक्किल अनफुस, अगर ये ना होते तो तुम अपने नफ्सों को मुशक्कत में डाल के अपने सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले होते। ये अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा किए हैं। अल्लाह फरमाते हैं वल खैल, ये जो खच्चर है, ये जो बेगाल घोड़ा है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमीर जो है, गधा जो है, ये तुम्हारे लिए पैदा किया है। और अल्लाह फरमाते हैं ये किस लिए? लितरकबूहा, तुम इनके ऊपर सवारी कर सको। और अल्लाह फरमाते हैं व यखलुकु मा ला तअलमून, ये तुम्हारी सवारियों के लिए अल्लाह ऐसी ऐसी चीजों को भी पैदा कर देगा जिनको तुम जानते नहीं हो। आज इंसान ने अल्लाह की दी हुई अकल के साथ कैसी कैसी सवारियां बना ली कि जो दिनों के सफर होते थे आज इंसान घंटों में तय कर लेता है। ये सब के सब अल्लाह के इनाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां पे इनका जिक्र किया है। और उसके बाद आगे अल्लाह फरमाते हैं ऐसे लोग जो अपनी जानों पर जुल्म करने वाले होते हैं, जब उनके पास फरिश्ते आते हैं, उनकी मौत का वक्त आता है, तो वो उनके आगे फर्मा बरदारी डालते हैं। अल्लाह फरमाते हैं उस वक्त इनकी फर्मा बरदारी किसी काम की नहीं होती। ये कहते हैं मा कुन्ना नअमलु मिन सू, हम आज के बाद कोई बुरा अमल नहीं करने वाले होंगे। अल्लाह फरमाते हैं कि उस वक्त इनको किसी चीज की फिर मोहलत नहीं दी जाएगी। और अल्लाह फरमाते हैं जब इनकी रूहों को कब्ज कर लिया जाएगा उसके बाद फिर इनके लिए हुक्म आएगा फदखुलू अबवाब जहन्नमा, तुम जहन्नुम के दरवाजों से दाखिल होते हुए इसके अंदर दाखिल हो जाओ और अब तुम हमेशा हमेश यहीं पर रहोगे।
اور रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इंसान मर जाता है उसकी क़यामत उसी वक्त से शुरू हो जाती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ऐसे बुरे अंजामों से बचा करके रखे। और उसके बाद इसके आगे चल के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज का जिक्र किया है कि ये जो मुशरिकीन मक्का हैं, ये कहते हैं कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। यजअलूना लिल्लाहिल बनात, ये अल्लाह के लिए बेटियां बनाते हैं। फरमाया सुब्हानहू, अल्लाह की जात इन सब चीजों से पाक है, क्योंकि औलाद का होना ये मोहताजगी है। इंसान बसा औकात अपनी औलाद के हाथों मजबूर होके, कितने ऐसे काम होते हैं जो खुद नहीं करना चाहता लेकिन औलाद की मोहब्बत में मजबूर होकर कर बैठता है। या बसा औकात बुढ़ापे में इंसान को औलाद की जरूरत होती है, उनका मोहताज होता है, लेकिन अल्लाह की जात वो है जो इन सब मोहताजगियों से पाक है। अल्लाह फरमाते हैं सुब्हानहू, अल्लाह इन चीजों से पाक है। और अल्लाह फरमाते हैं वलहुम मा यश्तहून, अल्लाह के लिए तो वो बेटियां बनाते हैं, लेकिन जब उनमें से किसी को बेटी की खुशखबरी दी जाती है तो उनके चेहरे स्याह हो जाते हैं। वह कज़ीम, वो गुस्से की हालत में आ जाते हैं। और अल्लाह फरमाते हैं यतवारा मिनल कौमी मिन सू, वो लोगों से छुपते फिरते हैं कि लोग कहेंगे कि इसके घर में बेटी पैदा हो गई है। और उनकी रवस जो होती थी कि वो या तो बेटी को इस गम को बर्दाश्त करते हुए अपने पास रख लिया करते थे, अम यदुस्सुहु फित तुराब, या उसको जिंदा मिट्टी के अंदर दरगोर कर दिया करते थे। जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने बेटी को इज्जत अता फरमाई। जब इस्लाम आया इस्लाम ने औरत को इज्जत अता फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन आला जारियतैन, जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां दी और उसने उनकी अच्छी परवरिश की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दखलतु अना व हुवा फिल जन्नती, मैं और वो जन्नत में दाखिल होंगे कहातैन, जिस तरह ये 2 उंगलियां होती हैं। और एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा इंसान जो आजमाया गया 3 बेटियों के साथ, उनकी अच्छी परवरिश करके उनके अच्छे तरीके से फराइज जिसने अदा कर दिए, अल्लाह उसको अपनी जन्नत का वारिस बना देंगे। और सहाबी ने पूछा अल्लाह के नबी अगर किसी की 2 बेटियां हुई, आपने फरमाया अगर वो उनकी अच्छे से परवरिश करता है अल्लाह उसको भी जन्नत में दाखिल कर देंगे। फिर एक सहाबी ने पूछा अल्लाह के नबी अगर किसी की 1 बेटी हुई, फरमाया अगर वो अपनी 1 बेटी की भी अच्छे तरीके से परवरिश करने वाला होगा अल्लाह उसको भी अपनी जन्नत का वारिस बना देंगे। इस्लाम ने औरत को इतनी इज्जत अता फरमाई। उसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो पायों की नेमतों में से एक बड़ी नेमत का जिक्र किया है, अल्लाह फरमाते हैं उसके अंदर तुम्हारे लिए इबरत भी है। नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फर्सिन व दमिन लबनन खालिसा, देखो एक तरफ गोबर होता है एक तरफ खून होता है, अल्लाह उसके दरमियान से तुम्हें व्हाइट कलर का दूध देते हैं। ये अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह उसको मिक्स नहीं होने देते। और ये तुम्हारे लिए अल्लाह फरमाते हैं साइगन लिशारिबीन, जो पीने वालों के लिए जो बड़ी मजेदार चीज होती है, ये अल्लाह की नेमतों में से तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। उसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो शहद की मक्खी का जिक्र किया है। अल्लाह फरमाते हैं व औहा रब्बुका इलन नहली, तेरे रब ने वही की शहद की मक्खी की तरफ कि तू पहाड़ों के अंदर अपने घरों को बनाओ और तुम मुख्तलिफ तरह के दरख्तों से फलों को चूस करके उसके अंदर से जो है वो शहद को बनाओ। और अल्लाह फरमाते हैं वफीही शिफाउन लिन्नास, उस शहद के अंदर लोगों के लिए शिफा भी है। और ये कदीम जमाना से हिकमत के अंदर शहद जो है इसको इस्तेमाल किया जाता था। आज भी जदीद दौर में मुख्तलिफ मेडिसिन के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। और पुराने जमाने के उलमा तो बाकायदा इस पे लिख के आए हैं कि पुराने जमाने में लोग बतौर शहद को अगर कट लग जाता, कोई जख्म हो जाता, तो उसके ऊपर बतौर मरहम के इस्तेमाल किया जाते। और ये इतना इफेक्टिव होता था कि इसके साथ जख्म के निशान भी मिट जाया करते थे। तो ये शहद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शिफा रखी है। और उसके बाद अल्लाह जो ये फरमाते हैं कि हमने शहद की मक्खी की तरफ वही की, इससे ये पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गैर नबियों की तरफ भी वही की है। जैसे उम्मे मूसा की तरफ वही की, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा की तरफ वही की। तो वही का किसी की तरफ नाजिल होना यह इस बात की अलामत नहीं होती कि वो नबी बन जाता है, बल्कि गैर नबी की तरफ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही की है। उसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मिसाल देके
तौहीद का मसला समझाया है। अल्लाह फरमाते हैं देखो तुम्हारा कोई गुलाम हो, तुम नहीं चाहते कि उसके पास इतना माल आ जाए कि वो तुम्हारी बराबर की सीट पर बैठे। जब तुम इंसान होके अपने जैसे इंसान को अपने बराबर बिठाना बर्दाश्त नहीं करते, तो फिर तुम अल्लाह के लिए इनको इंसानों को शरीक बना के अल्लाह के बराबर कैसे बैठाते हो? तुम अल्लाह के बराबर इनको कैसे बैठाते हो? और ये वो शरीक हैं, अल्लाह फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारी की सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं, इन सब को पैदा करने वाला भी अल्लाह ही है, और तुम नादान होकर के इनको अल्लाह के बराबर बैठाते हो। यहां पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद का मसला समझाया, और उसके बाद आगे अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान, अल्लाह तुम्हें इस बात का हुक्म देते हैं कि तुम जब भी बात करो तो अदल की बात किया करो, एहसान का मामला किया करो, व ईता इज़िल कुर्बा वल यतामा, और जब तुम किसी तुम्हारे जो करीबी रिश्तेदार होते हैं तुम इनको अपने मालों में से हिस्सा दिया करो, व यन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, और अल्लाह तुम्हें बुराई और बेहयाई के कामों से रोकते हैं। और आगे अल्लाह फरमाते हैं वअऊफू बिअहदिल्लाह इज़ा आहदतुम, जब तुम कोई मुआहदा कर लो, वादा कर लो, उन वादों को पूरा करने वाले हुआ करो। वला तनकुसुल ईमान बअद तौकीदिहा, और जब तुम अल्लाह के नाम पे कोई कसम उठा लो तो उस कसम को पूरे करने वाले बना करो, उस कसम को तोड़ने वाले ना बना करो, ये ईमान की अलामत नहीं है। उसके बाद आगे अल्लाह फरमाते हैं फइज़ा क़रअतल कुरान फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जब तुम अल्लाह की किताब कुरान पढ़ने लगो उससे पहले इस्तिआज़ा पढ़ लिया करो, क्योंकि जब तुम इसको खोलते हो तो हिज़्बुश शैतान जो दूसरा ग्रोह है वो शैतान तुम्हारे लिए मुख्तलिफ तरह के वसवसे पैदा करता है। फरमाया इससे पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो, और इस पारे के इख्तिताम पे जाके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए दावत उम्मत दावत के लिए, क्योंकि ये जो उम्मत है ये दावत देने वाली उम्मत है, वो नबियों की जिम्मेदारी निभाने वाली उम्मत है, उनके लिए एक स्ट्रेटजी को बयान किया। अल्लाह फरमाते हैं उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिक्मा, जब तुम किसी को अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाओ तो हिकमत के साथ बुलाया करो, दनाई के साथ बुलाया करो। ये ना हो कि तुम्हारी दावत देना फितना बन जाए। जहां पे फितने का डर हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा मेरा दिल चाहता है कि मैं बैतुल्लाह को अपने बाप इब्राहिम की बुनियादों पर खड़ा करूं, लेकिन मुझे फितने का डर है कि लोग कहीं फितने के अंदर मुब्तला ना हो जाए। तो अगर फितने का डर हो, जहां पे दावत देना जो है वो फितने का जरिया बंदा हो, तो वहां पे हिकमत और दनाई के साथ जो है वो दावत देनी चाहिए। वल मौइज़तिल हसना, और अल्लाह फरमाते हैं जो तुम्हारा अंदाज हो वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर किसी को एक दफा बात बताई उसने नहीं मानी, दूसरी दफा बताई, तीसरी दफा बताई, तो हमारा वे ऑफ टॉकिंग चेंज हो जाता है, हम हाइपर हो जाते हैं, हम फौरन जो है वो गुस्से में आ जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं ये तुम्हारा अंदाज नहीं होना चाहिए। वल मौइज़तिल हसना, बड़े अच्छे अंदाज के साथ तुमने नसीहत करनी है। और अल्लाह फरमाते हैं वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, अगर कभी डिबेट करने का मौका आ जाए तो उसमें भी तरीके अहसन को जो है वो हाथ से नहीं जाने देना, क्योंकि तुमने दावत देनी है, तुमने अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाना है, और इन तरीकों को, इन अल्लाह के बताए हुए तरीकों को अगर तुम छोड़ दोगे तो तुम दावत देने में उस तरह से कामयाब नहीं हो सकोगे। अगर तुमने वो नबियों वाला काम करना है जो मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, तो उसके लिए हमें अल्लाह के इन बताए हुए तरीकों को अपनाना है। अल्लाह मुझे और आपको कुरान को सही फहम जो है इसका वो अता करके हमें इसे अपनी जिंदगियों में अपनाने की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।